everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video हम पढ़ने वाले हैं important MCQ questions of the chapter secondary activities for class 12th geography. And similarly we have also practiced the MCQ questions of previous chapters, so you can check them as well. And for now let us jump into this video. हमारा पहला question है, which of the following types of industries produces रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है? ऑप्शंस आर कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज या फिर फुटलूज इंडस्ट्रीज। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है। Second question is, which activities transform raw materials into valuable products? So the correct answer is option number B, secondary activities. ठीक है। secondary activities में क्या होता है, जो भी raw material है उसको process किया जाता है, manufacture किया जाता है and then it is converted into a valuable product. Okay, next question is, which industry is located near raw materials? Options are dairy, cotton textiles, handicrafts या फिर aircrafts. So the correct answer is dairy. Okay, जो भी dairy से related industries होती हैं, milk से related industries होती हैं, तो वो raw material के पास में ही located होती हैं. Okay, next question is, TISCO is an industry of which sector? So TISCO, which is Tata Iron and Steel Company, ये किस sector से related है, that you have to tell. Options are public sector, private sector, joint sector या फिर multinational sector. So it is a private sector industry and option number B is the correct answer. Okay. Next question is, Ruhr is an industrial region of, options are England, Germany, France या फिर USA. So Ruhr is one industrial region and ये किस country से belong करता है, that you have to tell. So it is a part of Germany. Option number B is the right answer. Next question is, where is Silicon Valley located? Near New York, near Montreal, near San Francisco, near Boston. So the correct answer is option number C, near San Francisco. Okay. Next question is, which center is known as Rust Bowl of USA? Options are Pittsburgh, Chicago, Gary या फिर Buffalo. So the correct answer is Pittsburgh. ठीक है, Pittsburgh is known as the Rust Bowl of USA. Next question is, which of the following is not a factor affecting industry? तो इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाला इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? ऑप्शंस आर रॉ मटेरियल, मनी, इंटरनेट या फिर ट्रांसपोर्ट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज इंटरनेट. बाकी के सारे ही फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, मनी और ट्रांसपोर्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? विच इन सिंपलर वर्ड्स मीन्स कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जहां पर रॉ मटेरियल फार्म से नहीं आता है, एग्रीकल्चर से नहीं आता है. ठीक है. सो ऑप्शंस आर शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. बाकी की सारी ही इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए लेदर, option number B cement, option C cotton and option D is iron and steel industry. So here the correct answer is cotton. ठीक है, जो cotton industry होगी वो हमारी agricultural based industry है. ठीक है. Next question is, which of the following is not correct about the finished goods of cottage manufacturing? सो फॉर दिस यू शुड नो व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है. ये बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल बिजनेस होता है जहाँ पर लोग जो है अपने घरों में ही चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेते हैं लोकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करके, बेसिकली जो उनके घर में ही इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं. ओके, सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको ज़्यादातर क्या करते हैं अपने घरों में ही यूज़ कर लेते हैं या फिर उसको लोकल रीजन्स में ही सेल कर दिया जाता है. ठीक है. सो इट इज़ फॉर अ वेरी लिटिल कंजम्पशन. लोग अपने ही कंजम्पशन के लिए जो है इस टाइप का बिजनेस करते हैं या चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो लेट अस सी द ऑप्शंस. दीज मे बी फॉर द कंजम्पशन इन द सेम हाउस होल्ड, विच इज करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन इज, दीज आर फॉर सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, विच इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. यही स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं बेचते हैं, इट इज़ सोल्ड आउट इन लोकल ओनली. ठीक है. ज़्यादातर तो वो एक ही घर में जो है यूज़ कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है,
वरना अगर इट इज़ मोर देन दैट तो वो लोकल में ही सेल कर लिया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी ही इज़ योर करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शंस एज वेल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ finished products are sold in local markets, that is true. next option is these are for villagers। तो या मोस्टली हमको देखने को मिलेगा विलेजर्स जो है, जो गांव के लोग होते हैं, वो इस टाइप के चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, इस टाइप का काम करते हैं। ओके, सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Next question is consider the following statements and choose the correct option. So statement number first is iron ore cannot be used directly from the mining areas, which is true। iron ore को हम directly नहीं यूज़ करते हैं, जो भी mining area से निकलती है उसको हम directly नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसको हमें पहले प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। आयरन ओर में से आयरन को क्लियर करना पड़ता है, आयरन को सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है, देन ओनली वी कैन यूज इट। सेकेंड स्टेटमेंट इज आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल, विच इज ट्रू एज वेल, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। So let us see the options. Option number A says only one is correct. Option number B only two is correct. Option number C is both the statements are incorrect. ठीक है, and the option number D is both statements are correct and statement 2 correctly explains the statement 1. ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये बात सच है कि जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो बता रहा है कि क्यों हम आयरन ओर को माइनिंग एरिया से डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके अलावा भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज बाकी के तीन ऑप्शंस तो बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे हैं, बिकॉज स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, एंड ये कोई भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, next question is the dependence of industries on labor has reduced because of quality control, hydroelectricity, infrastructure या फिर automation। so here the correct answer is automation। automation की वजह से जो भी इंडस्ट्रीज लेबर पे डिपेंडेंट थी अब वो डिपेंडेंसी कम हो गई है, एंड द रीजन इज ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन में बेसिकली क्या होता है, जो मशीन्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं ताकि जो ह्यूमंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम ना पड़े, ठीक है। सो बेसिकली मशीन्स आर यूज्ड फॉर डूइंग वर्क इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। ओके, that is what we call as automation। so here the correct answer is automation। next question is when many industries are concentrated in a particular region to share factors of production, it is termed as flexibility, joint sector, professionalization, agglomeration economies। so here the correct answer is agglomeration economies। जब एक ही पर्टिकुलर रीजन में कई सारी इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट हो जाती हैं, है ना, इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। Which of the following is are characteristics of technopolis? Option A, regional concentration of high-tech industries, presence of highly specialized industries, प्रेजेंस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रीज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सो टेक्नोपॉलिस का मतलब यही होता है वो एरिया या फिर वो रीजन जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनका सेटअप हो, उनका कंसंट्रेशन हो, तो देन दैट रीजन इज नोन एज टेक्नोपॉलिस, ठीक है। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्री हैज अ ग्लोबल मार्केट? आर्म्स, एल्यूमिनियम, ऑयल सीड्स या फिर कॉटेज। सो आर्म्स इंडस्ट्रीज हैव अ global market, option number A is your right answer। okay, next question says aluminum industry is located near the source of market, raw material, skilled labor या फिर energy। so answer to this question I will not give, you guys will comment down in the comment section। okay, and here we are done with the questions। I hope you enjoyed practicing। if you like the video give it a thumbs up, share among your friends and subscribe to my channel। हम मिलेंगे हमारे next video में with another bunch of questions and another chapter। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।